Good morning, one and all present here. I am Rupendra Ramcharan Meshram, PGT Computer Science, KV number 1 Devlali, Nasik. Today I am here to hearty welcome you all on the occasion of National Sports Day 2020. On this particular auspicious day, we are going to remember Major Dhyan Chand, who has brought laurels to our country by winning various medals in various events, various platforms. On this auspicious day, we are conducting various activities through online mode, and one of the activities which we are going to celebrate or we are going to conduct right now is the online speeches. On this series of online speeches, I first of all welcome Mrs. Chaya Khobragade of our Vidyalaya, who is PET, and she is going to tell you about the importance of this day and how we have to get motivated and we have to get energized for living our livelihood and enjoy our Morning to one and all present here. Respected Principal Sir, teachers and my dear students. As you all know that the whole country is celebrating National Sports Day. I would like to wish you all happy National Sports Day. Today I will share few things about National Sports Day. Every year August 29 is observed as the National Sports Day in India. You will have a question in your mind that why this day was selected as National Sports Day. This day was selected because it's the birthday of legend Major Dhyan Chand, one of the best sportsmen ever to have graced the game of hockey. He is also known as the wizard or the magician of hockey. The National Sports Day, also known as Rashtriya Khel Divas, was first inducted into the long list of celebratory days in 2012. Ever since then, it has been attraction for ardent sports lovers of the country. The sole reason behind celebrating National Sports Day lays in championship the spirit of sportsmanship and propagating the message of various sports. Hockey always has special place among Indians. The present generation sometimes looks back with hockey always has special place among Indians. The present generation sometimes looks back with a sense of disbelief about the golden era of Indian hockey, when India won three successive Olympic gold medals in the field hockey in 1928, 1932, 1936. That era was led by none other than Dhyan Chand, who scored 33 goals in 12 matches. Dhyan Chand was born in Allahabad to Samseshwar Dutt Singh. Dhyan Chand joined the Indian Army at the age of 16 and never played hockey during his childhood. Slowly he was attracted to the game and progressed quickly to represent India. In 1936 Olympic, Dhyan Chand displayed such unbelievable skill with his hockey stick that a German newspaper carried a banner headline, "The Olympic complex now has a magic show too." The next day, posters were displayed all over Berlin which showed, "Visit the hockey stadium to watch the Indian magician Dhyan Chand in action." There is also a legendary story saying that his skills were so good and godly that in one instance his opponent went on to physically check his hockey stick. If there is specially glued with stick the ball to his stick. Global names like Adolf Hitler has acknowledged his excellence. Hitler was so overwhelmed by Singh and his performance against his own country that he desired to buy Singh hockey stick out of admiration for the three times Olympic gold medalist. Dhyan Chand played internationally from 1926 to 1949. He scored 570 goals in 185 matches. According to his autobiography, the government of India awarded
India's third highest civilian honor of Padma Bhushan in 1956 to Dhyanchand, after putting his stamp on international hockey arena and have served his country to reach its pinnacles of glory multiple times. Dhyanchand passed away on 3rd December 1979. Even though the legend died in grave financial trouble, he remains a legendary figure in the Indian world of hockey. The most noted memorials for him is the Major Dhyanchand Awards, the highest awards of lifetime achievement in sports and games in India, and the National Sports Day celebration of his birthday. The National Sports Day is a big celebration of sporting talent in our country. India is packed with individuals who have the flair for sports. Rashtriya Khel Divas focus in promoting this talent, whereby India can scale higher glory in the international sphere. Students, sport is a very important activity for you. It's one activity which can help you develop multiple qualities like sense of togetherness, leadership skill, stamina, physical strength, planning and strategy, and teamwork. This quality helps us to excel in life. Sports teaches discipline, respect, friendship, leadership, and overcoming adversity. It is a crucial part of growth and development for all of us. Sports teach teamwork. In future, you will need to exhibit this kind of teamwork in your life. It doesn't matter if a team wins or loses. You should all be proud if you work as a team. Sports also make our immunity system strong, which is very much important in today's situation where corona pandemic in around the world. Students, you all know that KVS gives a lot of attention towards the sports. KVS organized many events competition for promoting culture of sports. KVS organized cluster level sports meet, regional level sports meet, national and SJFI. KVS tried that maximum number of students should participate in sports and develop different qualities which are developed by the sports. KVS focus on the all-around development of the child. The principal sir of our school, KV1 Devlaji, Mr. Rajesh Kumar, also encouraged students to participate in different sports and bring laurels and glory for the Vidyalaya. National Sports Day is not a tribute to one of greatest in the same. It also reminds us the importance of sports in our life. The day celebrates every sport as an equal and none सगळं मन one of greatest in the game. It also reminds us the importance of sports in our life. The day celebrates every sport as an equal and no one particular game is given more or less importance. Once again, I wish you all happy National Sports Day. खेलते रहो, पढ़ते रहो, फिजिकली फिट बनते रहो. Stay home, stay safe. Thank you. Thank you, Chaya ma'am, for your valuable words. She has explained how Major Dhyanchand has devoted his life for the upliftment of our hockey event in around the world. He has brought laurels to our country and he has always been inspiring figure among all the students and all the people of our country. Now, I would like to welcome the root of our school, that is our principal, Mr. Rajesh Kumar, who will guide you and motivate you in the event of this auspicious National Sports Day. आदरणीय अभिभावकगण, शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम 29 अगस्त को
राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि हमारे हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद जी का जन्म दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। उनको याद रखने के लिए और खेल को बढ़ावा देने के लिए 29 अगस्त को केंद्रीय विद्यालय वन देवलाली जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहा है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक कहावत हुआ करती थी पुराने कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। ये कहावत जो है बिल्कुल अब झूठी हो गई है, क्योंकि अगर आप खेलते हैं कूदते हैं तो आपके अंदर एक स्फूर्ति आती है, एक ताकत आती है, आपके अंदर एक शक्ति आती है। इससे आपका मन भी जो है वो आपके संयम में रहता है और आप सारे कार्य कर सकते हैं। आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद जी जो है हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। उनका जो एक खेल था जर्मनी के साथ में, उसमें जर्मनी के कोच ने कई बार उन पे उंगली उठाई कि आपने जो है हॉकी में कोई मैग्नेट फिट किया है जिससे कि बॉल आपके स्टिक के साथ में कंटिन्यूस जो है लगातार साथ में बनी रहती है। तो उन्होंने हॉकी स्टिक बदली और उसके बाद में उससे बेहतर जो है खेल दिखाया। तो खेल हमारे जीवन में केवल इतना ही महत्व नहीं रखता है, इससे हमारे अंदर एक एकता आती है, क्योंकि जब आप एक टीम में साथ मिलकर खेलते हैं तो आपको एक दूसरे पर भरोसा करना, एक यकीन करना और एक जो टीम स्पिरिट होती है, एकता होती है, वो आती है। और यही एकता आपको देश को आगे बढ़ाने में भी सहायक होती है। खेल के साथ साथ में हमें और भी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में मानसिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। इसमें मैं ये बात कहना चाहता हूँ बच्चों, कई बार कोई टीम जीत जाती है, कोई टीम हार जाती है, तो हारने वालों को कोई अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि असल में होता ये है कि कोई भी टीम हारती नहीं है, वो सीखती है। जीतने वाले के लिए एक टारगेट बड़ा हो जाता है कि इनको हर बार जीतना पड़ता है, लेकिन जो टीम जीत नहीं पाती है उसके सामने एक लक्ष्य होता है जीतने का। तो हारना कुछ नहीं होता है, इसमें या तो सीखना होता है या फिर जीतना होता है। इसमें मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जब आप टीम में खेलते हैं तो जो आपसी मतभेद होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक टीम में रहकर एक टीम के साथ काम करना होता है। तो मतभेद खत्म करके आप जो है अपना दोस्ती, अपनी मित्रता जो है बढ़ा सकते हैं, जो कि देश के उन्नति के लिए सहायक होती है। मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसके लिए समय बहुत कीमती होता है। वो एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ में काम करते हैं, क्योंकि हर एक मैच या गेम में समय के बहुत महत्व होता है, चाहे वो हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, चाहे दौड़ का हो। एक एक क्षण, एक एक सेकंड उसमें बहुत कीमती होता है, जो उनको ये बताता है कि उनकी टीम कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो मैं केवी1 परिवार की तरफ से आप सभी को जो है शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में खेल को भी उतना ही महत्व दें जितना पढ़ाई को देते हैं। इस कोविड परिस्थिति के कारण आप लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, जिसका हमें बहुत दुख है। लेकिन जैसे आपको मौका मिलता है तो आप सुबह अकेले व्यायाम कर सकते हैं। आप छोटी मोटे इंडोर गेम्स, कैरम बोर्ड, लूडो, चेस, इंडोर गेम्स भी खेल सकते हैं, जिससे कि आपका मानसिक विकास भी होता है। हम आशा करते हैं कि कुछ ही समय में कोविड स्थिति है इसमें सुधार आएगा और हम सब वापस जो है एक सामान्य जिंदगी जीने लगेंगे और खेल को आस्ते होता है करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी होते हैं वो बहुत ही लगातार मेहनत करते हैं। लगातार मेहनत करने से ही सफलता प्राप्त होती है। इसके लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। उठते समय, बैठते समय, सोते समय, हर समय आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मुझे इस खेल के अंदर मुझे जो है पारंगत होना है। तो उसके लिए कोशिश करते हैं तो होता है। मेजर ध्यानचंद ने भी इसके लिए बहुत कोशिश की, जिसकी वजह से उन्होंने कई घंटे जो है खेल मैदान में बिताए और जिसका परिणाम आपको पता है कि भारत जो है 3 बार ओलंपिक के अंदर जो है मेडल प्राप्त हुए हैं और ये लगातार कोशिश का ही नतीजा है। हमारी दिनचर्या में भी संतुलन होना चाहिए। पढ़ने के साथ साथ हमें खेलने का भी वक्त देना चाहिए। अब माननीय मोदी जी हैं, उनका उदाहरण लेते हैं तो सुबह से वो अपनी शुरुआत जो है योगा से करते हैं। तो योग जो है मन को स्वस्थ रखता है, संतुलित रखता है और हमें पूरे दिन भर के काम करने की शक्ति प्रदान करता है। एक अच्छा खिलाड़ी ना केवल अपना बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करता है। और उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और उनकी वजह से हमें जो है देश में बहुत बड़ी पहचान मिली है। तो उनका जिंदगी में सफर था, बहुत ही कठिनाइयों वाला था। उनको बहुत इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा,
तो खेल के द्वारा हम एक संघर्ष को कैसे जीत सकते हैं, कैसे संघर्ष कर सकते हैं, जिंदगी के साथ में कैसे लड़ सकते हैं, उसका भी एक हमें कठिन अनुभव होता है। खेलों में खेल की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। खेल जो है आपसी कटुता को जो है मिटाते हैं और भाईचारा और दोस्ती की भावना को बढ़ाते हैं। हमने देखा होगा कि मैच खत्म होने के बाद में, खेल खत्म होने के बाद में दोनों टीम के खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाते हैं। वो ये दर्शाते हैं कि हम आपस में दोस्त हैं और आपस में एक साथ मिलकर हम खेले हैं। तो खेल में जो है खेल की भावना से खेलना बहुत जरूरी है। खेलकूद केवल हमारा शारीरिक नहीं, मानसिक विकास भी करता है। खेलकूद करने से हमारी आंखों की ज्योति, हड्डियां, मांसपेशियां दुरुस्त रहती है और हम किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। खेलकूद से हमारा मनोरंजन भी होता है। खेलकूद से हमारी शरीर जो है वो सुडौल बनता है, स्ट्रांग बनता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो भी कई गुना बढ़ जाती है। तो इसीलिए मेरा आप सबसे ये अपील है कि अपने बच्चों को जितना मौका हो सकता है खेलने का दें। इस परिस्थिति में, कोविड सिचुएशन के अंदर आपको जितना हो सकता है घर के अंदर ही खेलने के लिए आप उन्हें प्रोत्साहित करें, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। खेलकूद से जुड़े व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। आजकल अलग अलग कॉलेज में, स्कूल में, सब जगह पे खेल की बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं और उन प्रतियोगिताओं में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इनाम राशि भी होती है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस साल हमारे विद्यालय में बहुत सारी गतिविधियां हुई, जिसके अंदर हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके अंदर कबड्डी में, हॉकी में हमारे विद्यालय को जो है नेशनल लेवल पे बच्चों को खेलने का मौका मिला और उसकी तरफ से केंद्रीय संगठन का हमें जो है एक राशि प्राप्त हुई है। 43,000 की राशि प्राप्त हुई है और जल्द ही हम ये राशि को उन बच्चों को देंगे, जिससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा और खेलने का और अच्छा अवसर भी दिया जाएगा। महिला खिलाड़ी का उदाहरण लें तो हम मेरी कॉम, पीटी उषा, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, उन्होंने देश का नाम बहुत ऊंचा किया है। तो मेरी अभिभावकगण से ये अपील है कि आप भी अपने बच्चों को, लड़कियों को जो है खेलने का मौका दें, जिससे कि वो विद्यालय का एवं देश का नाम रोशन कर सके। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्राचार्य महोदय, आपने बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वर्ड्स के साथ हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया है। जैसा कि प्राचार्य जी ने बताया कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी में एक जादुई ताकत थी। वो जब अपने बॉल लेकर चलते थे तो सामने वाले के खेमे में गोल करके ही दम लेते थे। तो मेजर ध्यानचंद जी के जैसे हमें भी फोकस्ड रहना है और प्राचार्य जी ने हमें ये बताया कि किस तरह से हम अपने ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं खेल और पढ़ाई के माध्यम से। स्पोर्ट्स और स्टडी दोनों ही बराबर के इम्पॉर्टेंट है। जो हम स्टडी में काम करते हैं तो उससे हमें हमारी बौद्धिक विकास होता है, लेकिन जब हम खेल की बात करते हैं तो खेल में हमें स्पोर्ट्समैनशिप, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, टीम वर्क, ये सारे गुण हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से मैं प्राचार्य जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है आज बच्चों को, और इससे बच्चे डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं आगे चलकर। धन्यवाद। इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे स्कूल के एक बहुत महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स पर्सन, जो कि पीईटी मैडम के साथ हमेशा रहते हैं, छाया मैम के साथ हमेशा रहते हैं और बच्चों में खेल की भावना जागृत करते रहते हैं। वो ना केवल जागृत करते हैं बल्कि वो बच्चों के साथ खेलते हैं और विद्यालय लेवल के, क्लस्टर लेवल के और नेशनल लेवल के, रीजनल लेवल के बहुत सारे इवेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। वो प्रमुख रूप से क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और एथलीट हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्यालय के प्राथमिक शिक्षक श्री हरीश चौहान सर को। धन्यवाद। Most respected principal sir, staff member and my dear students, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस को हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन भारत के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्हें खेल के इतिहास में सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने 1928, 1932,
1936 में हॉकी के क्षेत्र में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित किए। उन्हें अपनी गेंद नियंत्रण की कला में महारत के लिए विजार्ड कहा जाता है और हम सब उन्हें प्यार से हॉकी के जादूगर भी कहते हैं। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल किए थे। भारत सरकार ने 1956 में भारत के तीसरे उच्चतम सम्मान पद्म भूषण से ध्यानचंद को सम्मानित किया था। इसलिए उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिटनेस एंड वेलनेस थ्रू स्पोर्ट्स। भारत का हर बच्चा खेल सके, इसलिए भारत सरकार ने हर स्कूल कॉलेज में खेल को अनिवार्य कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल में भी हर वर्ष स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत SBSB फिट इंडिया फ्रीडम रन प्लॉगिंग रन का आयोजन किया जाता है और आप सभी बच्चे इसमें बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। खेल खेलना बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि वे फिजिकली और मेंटली फिट रह सके। हर स्कूल में खेल खेलना चाहिए ताकि देश के कोने कोने से खिलाड़ी निकलकर आए और आगे चलकर भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करें। पढ़ाई के साथ खेल भी उतना ही ज़रूरी है। हम लोगों को खेल के प्रति जागरूकता करनी चाहिए। बच्चों के जीवन में खेल से होने वाले लाभ। मस्तिष्क का विकास। खेल खेलने से बच्चों में कॉग्निटिव स्किल का विकास तेजी से होता है। निष्क्रिय बच्चों की तुलना में वे अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और अपने माइंड का उपयोग अधिक अच्छी तरह से कर पाते हैं। सामाजिक कौशल्य का विकास होना। खेल खेलने से सामाजिक कौशल्य का विकास होता है। यदि आपका बच्चा खेलों में भाग लेता है तो उनमें सामाजिक कौशल्य का बहुत अच्छा विकास होता है। खेलों के दौरान आपका बच्चा अन्य बच्चों से मिलता है और उनसे बातचीत करता है। यह उसके सामाजिक कौशल्य के विकास में सहायक होता है। टीम वर्क सीखता है। जैसे कि किसी खेल में किसी मैच को जीतने के लिए बच्चे सोचते हैं कि हम इसमें क्या योगदान दे सकते हैं, तो वे आपस में किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं, आपस में किस प्रकार का तालमेल रख सकते हैं, यह टीम वर्क बच्चे खेलों से सीख सकते हैं। खेलों से शारीरिक विकास भी होता है। आप लोगों को सेहतमंद रखने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको सेहतमंद रखेगी। इन एक्सरसाइज में सबसे पहले आती है रनिंग। अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रखने के लिए दौड़ सबसे अच्छा विकल्प है। दौड़ना व्यायाम के सबसे सरल रूपों में से एक है, क्योंकि यह सिर्फ आपकी अतिरिक्त वजन को कम करने में ही मदद नहीं करता, बल्कि आपको स्वस्थ और फिट बनाने में भी मदद करता है। चाहे बच्चे हो या बड़े या फिर बूढ़े, हर कोई रनिंग कर सकता है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। दौड़ के फायदे। नियमित रूप से दौड़ लगाने से हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। रनिंग से हमारे शरीर में रक्त प्रवाह सुधरता है। इससे हमारे दिल की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। वजन घटाता है। अगर
आपको अपना वजन कम करना है तो दौड़ने से अच्छी एक्सरसाइज और कोई नहीं हो सकती। प्रतिरक्षा स्वास्थ्य को बढ़ाता है। अगर आप नियंत्रित रूप से जॉगिंग करते हैं तो आप एलर्जी, सर्दी, खांसी, फ्लू जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त नहीं हो सकते। नियमित रूप से दौड़ने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ती है और यह रोगों से सभी प्रकार का प्रतिरोध करती है। पाचन शक्ति सुधारें। रनिंग से पाचन शक्ति सुधारने में मदद होती है। यह भूख बढ़ाता है और एक्स्ट्रा कैलोरी को भी जला देती है। मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार। दौड़ना पूरे शरीर में प्रवाह को बढ़ने के लिए मदद करता है। इस कारण आपका दिमाग को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं जो आपके काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम होते हैं। तनाव को खत्म करता है रनिंग से स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है और आपके तनाव के स्तर को भी कम करने में मदद होती है। आपको अच्छा महसूस कराती है रनिंग। नियमित रूप से दौड़ने से आपको अच्छा महसूस कराती है रनिंग, क्योंकि आपके शरीर को ठीक और स्वस्थ बनाने में रनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसके बाद आता है साइकिलिंग। वजन घटाने से लेकर मसल्स बनाने तक साइकिलिंग आपके लिए फायदेमंद होती है। रोजाना साइकिल चलाने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। साइकिल चलाने से आपका शरीर फिट रहता है, क्योंकि साइकिलिंग से पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। हाल में ही एक रिसर्च में इस बात का पता चला है कि रेगुलर साइकिलिंग चलाने से कैंसर की संभावना 46% से कम हो जाती है। शोधकर्ताओं ने यह भी माना है कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से साइकिल चलाता है तो उसे कैंसर का खतरा आधा हो जाता है। इसलिए साइकिलिंग भी एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। उसके बाद आता है योगा। योगा कोई धर्म नहीं, यह जीने की एक कला है जिसका लक्ष्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन है। शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलित बनाता है। योग के फायदे। योग शारीरिक और मानसिक रूप से मानव जाति के लिए वरदान है। योग अभ्यास से रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। योग अभ्यास के नित्य अभ्यास से मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम होता है, जिससे तनाव दूर होकर अच्छी नींद आती है। प्राणायाम से ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। ध्यान करने से मन की एकाग्रता एवं धारणा भी बढ़ती है। मैं अपने स्पीच के अंत में दलाई लामा का एक फेमस सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। दलाई लामा सेड, हैप्पीनेस is the highest form of health, and happiness will come only when we will be healthy and fit. इस तरह से मैं अपना स्पीच खत्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद हरीश सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ों को बताया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे अपने जीवन में इसको यूज़ करेंगे, इसको अपनाएंगे और अब हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। किसी भी देश के लिए आगे बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रिया होता है वो हमारे देश के बच्चे होते हैं। बच्चे जो हैं वो हमारा भविष्य
निर्धारित कर सकते हैं, किस मार्ग पे वो जाएंगे, किस तरह से वो काम करेंगे, ये सब बच्चों पे निर्भर करता है। और मुझे आशा है कि हमारे जितने भी विद्वान गण हैं, हमारे प्राचार्य जी हैं, पीईटी मैडम हैं और हरीश सर, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, ये बच्चे अपने जीवन में अपनाएंगे और इसे अपनाकर हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने और उसकी महत्वता बताने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी स्कूल की होनहार छात्राओं को, जो आपको ये बताएंगे कि खेल किस तरह से हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, हमारे इमोशनल स्किल के लिए, हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, हमारे स्टडीज नेचर के लिए स्पोर्ट्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस बात को पूरी तरह से और मजबूती से पेश करने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूँ रोशनी गौड़ा 12th साइंस से, और उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा वैष्णवी गुरुले 12th कॉमर्स से। तो आइए सुने और जानें और इसे अपनाएं अपने जीवन में। Hello everyone, I am Roshni God of 12th Science from Kendriya Vidyalaya number 1 Devlali, Maharashtra, on the occasion of National Sports Day, that is the birth anniversary of our hockey legend Major Dhyan Chand. I want to share my experience of fitness at home during this lockdown period. The COVID-19 pandemic means that all of us have to stay at home and sit down more than we usually used to do. But at a time like this, it's very much important for all of us to be as active as possible, especially when you are cooped up working from home. It's particularly important to stay active both physically and mentally. One of the best forms of physical, mental, and spiritual practice is yoga. And yoga is best suited for the quarantine period. Practice of yoga takes care of all these mental health issues. It's a gift from God to the whole world. And now is the best time to start practicing yoga. Like I did, I started from some simple yogasanas like Balasana, that's child pose, which relieves fatigueness and stress. Pranayam promotes relaxation, and Surya Namaskar, which improves the metabolism of our body. And the best thing is that you don't even have to buy any equipments for it. All you need is you, your mind, and your soul, as its name suggests, interaction of your body and your soul. That is to join yoga, yuj, to unite. And for our well-being, we should follow a schedule, because schedule is like a blueprint of successful life. Being grateful and reading books creates peacefulness in our mind and brain. For a healthy state of mind, happiness and meditations are crucial. And for that reason only, there are laughter and meditation clubs. But again, due to this epidemic, there are no clubs in the green parks. But as where there's a will, there's a way. Just like we attain our online regular classes, we can also join and create our own meditation and laughter clubs to stay meditated happy and make others happy too. And as we all know that the positive attitude changes everything. So instead of being so much fearful, stressful and negative due to the current scenario, if we take the other side, that is the positive side, we can notice the calmness of nature, improvement in our climatic conditions, and feeling of being united and connected to each other. And most important thing is utilizing this time to develop a stronger bond with our family members by playing board games and riddles, spending quality time with them. And this attitude will not only help us to be focused on the positive side and positive thoughts, but also to find solution of every problem. And staying fit can be very easy even when the gyms are closed, as one can have a little walk on the terrace or skipping rope, or by doing some simple exercises like stretching and gardening, which promotes mindfulness. Developing healthier habits and following a schedule for yoga and doing the same as guided by Baba Ramdev is a great idea. Exercise and yoga are the best medicine in fact
for stress. So keep your stress level down and health level up. Thank you. Good morning. Today I am Vaishnavi Gurule of class 12th Commerce presenting my speech through online platform on sportsman spirit. A sportsman has a polite and generous behavior, especially while playing a sports or a game. It not only means taking part in a sports and playing game with set rules, but also leading a life with the same behavior displayed on the playing fields. A true sportsman follows all that rules in life which he has been following in the game. A person who has achieved skills and abilities in games but has not learned to apply them on her life cannot be called a true sportsman. On the other hand, a person who shows a strong sporting spirit in his life but has not achieved much in game is still a sportsman. Usually those who play games develop true sportsman spirit because they cultivate such nature during a training they receive. Some of the important qualities that a true sportsman display after defeats are discipline, joyfulness and respect for the opponent and cooperation. Display of sportsman spirit is always appreciated by others. It is helpful for human happiness and well-being. Fair play is an important quality in sportsman spirit. A side on a team is penalized. It is a player found at fault. Similarly, in life, one should always be fair-minded in dealing with other people. Some of the other important qualities that a true sportsman display in life include passion, sincerity, honesty, fairness, enthusiasm, and truthfulness. A true sportsman never practices unfair tricks, falsehoods, and cheating. He takes advantage of the weakness of his opponent. He always shows respect and obedience to his team captain. He works hard to win the confidence of his team. In life, to a sportsman obeys to his seniors and elders even if they disagree with them. Thus, respecting others and showing discipline is essential for a true sportsman. However, a competition who shows poor sportsman after losing a game or contest is often called a sore loser. In various games, players have to work in cooperation for their team. Only then they may succeed in winning. A sportsman knows that without mutual understanding, success is not possible. In the same way, in life we must always be by the side of our parents, relatives and friends when they need us the most. The spirit of sportsmanship requires cheerfulness even in the times of defeats and fairness. A person can develop the qualities of sportsmanship only when he works with the others without jealous doubts and fights. Working in harmony with others is the main essence for sportsmanship. Thank you.